अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1.2 we have discussed yesterday. Question number 1.29. और बिफोर द 29 मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लिंक बात कही गई है. एंड दैट क्वेश्चन इज a charge is given to a conductor. A charge is given to a conductor. Show that the strength of electric field is given by E equal to sigma upon epsilon. By using Gauss law. This is the question. It is because now 1.29 पे जाने से पहले we must understand what is due to a charge conductor. It is said that a charge is given to a conductor. What is the charge? So this is NCERT question. Yes. Someone saying something? Sir, this is NCERT question. This is NCERT based question. So the question number 1.29, it is said a hollow charge conductor is having a tiny hole. So first you must understand what is the field due to the charge conductor. So I am giving you from the mind side. Okay, the charge is given to a hollow, to a conductor, and the conductor may be hollow, solid. Yesterday we said in all the conditions it will remain same. Whenever the charge is given to the conductor, whenever excess charge यानी कि extra charge is given to the conductor, it must appear on outer surface of it. Or you can say no charge can reside inside a conductor. Does not matter that this is hollow or solid. Or you may say net electric field inside the conductor is always zero. किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता. होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? सरफेस पे होगा. ये जो है, ये फील्ड जो है, दिस इज ऑन द सरफेस. क्लियर? तो आपसे कहते हैं कि आपके पास में कंडक्टर है. अब कंडक्टर में बी ऑफ एनी शेप, तो यू मे एज्यूम दैट यू आर हैविंग एनी इररेगुलर शेप ऑफ द कंडक्टर. दिस इज अ कंडक्टर. ठीक, अगर ऐसे नहीं लेना चाहें तो आप दूसरी तरह का कंडक्टर मान सकते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर ले लीजिए. तो मान लीजिए कि आपके पास में ये कंडक्टर है. And the charge is given to it. The charge is given to the conductor.
whatever the charge was given that must appear on the outer surface. अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करूंगा ना तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ध्यान रखिएगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, E इक्वल टू 0 है यहाँ पर. इफ सपोज, एक्सक्यूज जी सर. सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज. सर मैंने कहा कि whenever the charge is given to a conductor then the excess charge must appear on the outer surface of it, one, or you may say no charge can reside inside a conductor hollow or solid, ठीक, or the net electric field inside a conductor is always zero. Inside the conductor electric field is zero. जितना भी charge होता है वो outer surface पे appear होता है. Yesterday we discussed this theorem if you remember. Got it? Yes. So what I am assuming, let there is a spherical conductor, a charge is given to it, so the charge must appear on the outer surface. Let there is a conductor which is given a plus Q charge, so charge must appear on surface. सर मेंशन कर रहा हूं मैं आउटर ऑफ इट, यानी कि कंडक्टर की आउटर सरफेस पे चार्ज अपीयर होगा एंड फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड. गॉट इट? यहां से जो फील्ड लाइंस बनेगी मेरे बच्चों वो क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी. हमने कल ये भी बनाई थी फील्ड लाइंस पेटेंट ड्यू टू ए कंडक्टर, इफ यू रिमेंबर. अगर किसी को डाउट हो तो इसके बाद में एक बार मैं फील्ड लाइंस पर बना दूंगा. इज दिस क्लियर? देन आफ्टर यू सी, लेट देयर इज ए Gaussian surface of एरिया ए. मान लीजिए एरिया ए ले लिया या एरिया डी, इसको इंटीग्रेशन में लगा दीजिए. एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डी मान लीजिए ये रहा. दिस इज द गॉसियन सरफेस. दिस इज द एरिया डी मान लीजिए. नाउ यू सी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पूरी सरफेस को कवर करके देखो. गॉट इट? इफ आई ड्रॉ एन एरिया वेक्टर हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर E डॉट n. सो एरिया वेक्टर will be in same direction of electric field. Hence, d phi it is equal to E close integral of dA. ये ठीक है? This will be phi equal to E close integral of dA for the whole surface. अगर मैं केवल छोटी सरफेस के लिए लिखूंगा तो E dA. ये ठीक है? Got it? This phi can be taken as integration of dq upon epsilon naught. ये ठीक है? Because जो सरफेस मैंने मानी उसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मैंने पूरे का इंटीग्रेट कर दिया. दिस इज E, दिस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी. अगर मैं इसको लिखूंगा dq, दिस इज सिग्मा इनटू dA. अब क्योंकि मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो क्लोज हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E
close integral of dA, sorry, here I am not putting the value of the area because this is applicable for any type of the shape and the size of the conductor. ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए स्फेरिकल बनाया था सर, मैं इसके बदले फ्लैट शीट भी लेता, मान लीजिए मेरे पास में ऐसी शीट होती मेटल की, तो भी मैं ऐसा ही काम करता। मैं आगे पेज पे डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा। नाउ दिस इज सिग्मा क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E close integral of dA. This is cancelled here, so E equal to sigma upon epsilon. Got it? Any doubt? Any doubt regarding this? Is this clear to all? Whenever you are calculating the electric field of a conductor, so remember the electric field is this. I said you that this is a spherical surface. Don't consider as a spherical. You may suppose any conductor, मान लीजिए उसकी सरफेस कुछ ऐसी थी, और ये ऐसी सरफेस कहां से आई? ये सरफेस मान लीजिए किसी एक सिलेंडर में से, आप इसको एक सिलेंडर मान के चल सकते हैं, है ना? आप इसको सिलेंडर लेके चले चलिए, सिलेंडर पे से मैंने छोटा सा सरफेस ले लिया, बट रिमेंबर दैट दिस इज ए मेटेलिक। तो इन ए मेटल केस everywhere the field will be, everywhere field will be only in the one side. ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट हो बच्चों बताओ जरा, anyone is having the doubt regarding this? There are 22 people, आकाश, अभिनव, अनन्या, अंश, अरीवा, आयुष पटेल, कोई समझ नहीं आया। हाँ जी सर, फवाज, हर्षिता, माही, वाला पॉइंट समझ में नहीं आया जी सर। सर, लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। this line here, यस सर। okay, now you see dq is the total charge and the surface charge density d sigma, this is dq upon dA, if you remember. So dq can be taken as sigma into dA. When you go for the whole surface, then you will be putting the integration sign. So integration of dq upon epsilon naught equal to E close integral of the dA. Got it? Is this clear? Is this clear? Then the dA will be cancelled by the dA. So the field will be independent of the shape and the size of the surface. Is this clear? So whenever you are having a conductor, so conductor is having the electric field only on the outer surface. Field is discontinuous. NOTE, no. Field is discontinued in conductor, or field lines cannot pass through a conductor. So suppose that this is a spherical conductor, मान लीजिए इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, सॉरी, this is the electric field, so electric field will be like this. तो फील्ड का पैटर्न बदल जाएगा, this is the pattern of the field. So when a conductor is placed in electric field, then field line number 1 perpendicular to surface,
What do you mean by perpendicular? Radial, inward and outward. रेडियल आउटवर्ड और इनवर्ड मतलब रेडियस की डायरेक्शन में आएंगे और चली जाएंगे। अगर मैं इसका एक इमेजिनरी सेंटर में आपको यहां बता दूं, ये सेंटर है, तो सर फील्ड लाइन जो होंगी वो सेंटर पे ऐसे आएंगी और यहां से डेविएट हो जाएंगी, ये आएंगी और ये चली जाएंगी। ये फील्ड लाइन ये ऐसे आएंगी एंड देन दिस विल बी पासिंग लाइक दिस। एम आई क्लियर इन माय वर्ड्स? इतनी बात समझ में आई बच्चों? फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नंबर 2, net field inside conductor, again I am repeating the word inside, E is 0, इसके अंदर E 0 रहेगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने ये जगह छोड़ी। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन cannot have sudden break, but when a conductor is placed in path of field lines, then got discontinued. Otherwise electric field line can never be discontinued. Am I clear in my words? ये बात समझ में आ गई बच्चों? अगर किसी को इतने में डाउट हो, once again I am telling you this thing. I took the one question because the question number 1.29 background is not given in NCERT. इसकी जो NCERT मिलेगी इस चैप्टर में नहीं मिलेगी, आगे वाले चैप्टर्स में मिलेगी। बट 1.29 को सॉल्व करने से पहले आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। Am I clear in my words? Is this clear? We are having 20 people. Anyone is having the doubt regarding this? This is the pattern of the field line. If suppose I remove this conductor, then the field line again will be straight. But when you say that the field conductor is kept, तो कंडक्टर फील्ड में रखा जाएगा तो उससे फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ द फील्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, दैट मींस समवेयर हियर इज द पॉजिटिव। इफ दिस इज द प्लेस देन दिस मस्ट बी द नेगेटिव। Now the field is passing from positive to negative. When you are saying that you are putting a conductor, it means by the method of the induction. Here, यहाँ पर मेथड ऑफ इंडक्शन से यहाँ पर नेगेटिव डेवलप हो गया, और अगर इधर नेगेटिव डेवलप होगा माय चाइल्ड, देन हियर माय डियर दिस विल बी द पॉजिटिव। तो फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव आया, ठीक है, और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया, और अंदर का नेट चार्ज क्या रहा? 0 रहा। Got it? This is known as that the electric field line cannot pass through the conductor. बाद में फिर से याद दिलाना, this is known as electrostatic shielding. Now what do you mean by electrostatic shielding? That means a conductor is kept in the electric field, ठीक है, तो कंडक्टर के पास में आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सर मेरा ये मोबाइल आपको दिखा होगा सबको, है ना। इस मोबाइल को लिया मैंने, अपने घर के आयरन के अलमीरा में रख दिया, उसके लॉकर में बंद करके, और दूसरे मोबाइल से मैं इस पर कॉल करूं, सर सिग्नल नहीं पहुंचेगा, हमेशा आएगा आउट ऑफ द रेंज। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट गो इनसाइड द कंडक्टर। बट इट उसको बदले, अलमीरा के बदले जो आपके घर में आयरन का कंटेनर हो, ठीक है, स्टीलनेस स्टील वाला, या कोई और मेटल का कंटेनर हो जो चारों तरफ से बंद हो सकता हो, उसके अंदर मोबाइल को रख दीजिए और उसका ढक्कन बंद कर दीजिए, उसके लिड को क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद में
दूसरे मोबाइल से कॉल कीजिए, देखिए सिग्नल नहीं पहुंचा। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ऑलवेज रिमेंबर, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पुटिंग इनसाइड अ कंडक्टर। बहुत सारे सेंसिटिव इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है ना, कैसे? एक कंडक्टर के अंदर। हॉलो कंडक्टर की स्पेशलिटी, लाइटनिंग हो रही है बहुत तेजी से, मान लीजिए आसमान में बिजलियां गिर रही हैं, मैं अपनी कार में जा रहा हूँ, ठीक है, और जगह जगह पे बिजली गिर रही है, खूब लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। अब डर लगेगा तो क्या करा जाए? बारिश इतनी तेज है कि आगे जा नहीं सकते, दिखाई नहीं पड़ रहा है, वाइपर इतनी स्पीड से उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अंदर से ह्यूमिड इतना हो रहा है, ठीक। तो क्या करा जाएगा? सजेशन होता है कि दैट when the thundering and the lightning is going on and you are going in the car, what is suggested to you? Go outside the car, go under the tree, or remain inside the car? So answer is remain inside the car. This theory was discovered by Michael Faraday, and Faraday designed a special type of a cage. उन्होंने अपने लिए एक केज बनाया था, और उस केज में उन्होंने क्या करा, ठीक है, उस केज के अंदर हर तरफ से इंसुलेटेड हो गया, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ, ठीक है, मेरे फीट भी ग्राउंड पे नहीं है, सब कुछ मेरा जो है इंसुलेटेड है, एक चेयर पे बैठ गया, एंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इट अराउंड 10,000 वोल्ट सप्लाई वाज गिवन, and the people were surprised that the Michael Faraday was completely safe. Reason, because inside the conductor electric field cannot approach. Am I clear in my words? Am I clear in my words? Yes, sir. किसी को भी इतने में कोई डाउट हो? फवाज, हर्षिता, माही, प्रिया, anyone, please don't hesitate in discussing, because here we are having to discuss. फिजिक्स जो है ना, आधे से ज्यादा सर समझने का खेल है। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुआ? यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव बन गया, यहाँ पॉजिटिव बन गया। अब जितना यहाँ पे नेगेटिव बना उतना यहाँ पे पॉजिटिव बना, यानी कि सब कुछ कैंसिल है। The electric field inside is permanently zero. Electric field line can never have sudden break, but true, when a conductor is placed in the path of the field lines, it get discontinued. नहीं तो ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन यहाँ से लेके तक जा रही है, लेकिन ये वाली लाइन यहाँ पे आके ब्रेक हो गई, तो फील्ड लाइन कैन बी डिसकंटिन्यू बाय पुटिंग। अगर मैं इसके साथ में एक और चीज लेके चलता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन, सपोज दैट देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज and there is a metallic sheet. ठीक, this is a point charge plus q. This is a metal sheet. So what I said you, the metal sheet, ठीक, और मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी डिफाइन कर देता हूँ जरा, so that अच्छे से देख पाए हम। This is a metal sheet. ये सारे पीडीएफ मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बनाकर भेज दूंगा। अभी मेरा पीरियड नंबर 5 भी है और 7 भी है। जिन लोगों को डाउट हो वो डाउट में डिस्कस कर सकते हैं, 5 और 7 पीरियड में फिर से मिलेंगे। अब दिस इज द चार्ज, दिस इज अ मेटल शीट, दिस इज हैविंग सफिशिएंट थिकनेस। तो फील्ड लाइन के आई सेड द कैरेक्टरिस्टिक, द फील्ड लाइन इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड। कौन से पे? कर्व सरफेस पे। रेडियल आउटवर्ड का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, है ना। यहां पर मैंने लिया फ्लैट सरफेस, तो फील्ड लाइन क्या होंगी? ये फील्ड लाइन, दिस इज द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइन। Whatever I am discussing now, ये please understand, and if having any problem regarding this, ये field line. When you say that the field is approaching here, it means that some negative charge is developing. This is the negative. अगर ये नेगेटिव हो गया तो डेफिनेटली पोलराइजेशन हो रहा है, अगर इधर नेगेटिव हो गया तो डेफिनेटली हियर एक पॉजिटिव डेवलप होगा। You see, these all field lines are perpendicular. Sorry, ये वाला फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं था, मैं इसको परपेंडिकुलर बना रहा हूं। These all field line will be perpendicular to the surface.
अब यहां से फील्ड लाइन पॉजिटिव होकर सीधे जाएंगी, कहां जाएंगी? हमें लगता है यहां से बिल्कुल सीधी चली जाएंगी, है ना? यहां पर फील्ड क्या हो गया? जीरो। फील्ड लाइन कैन नॉट पास थ्रू द मेटल, द फील्ड लाइन इज कंप्लीटली डिसकंटिन्यू। एम आई क्लियर इन माई वर्ड्स? अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस x है, if suppose I say you that this distance is x, तो यहां से फील्ड लाइन इन्फिनिटी नहीं जाएंगी, ये पॉजिटिव है, यहां पर एक वर्चुअल चार्ज आ जाएगा, और वर्चुअल चार्ज ये फील्ड लेकर आएगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इमेज। So this plane sheet will behave like a plane mirror for the charge. If this distance is x, so this distance is x. सर बट मेटल तो सर गुड कंडक्टर होता है, तो फिर चार्ज क्यों नहीं फ्लो कर, मतलब? से मैं चार्ज फ्लो ही नहीं करा रहा हूं, मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो अभी बात हो ही नहीं रही है। हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी तो मतलब दूसरी बात फिर से सुनिए, ये प्लस क्यू चार्ज है सर, मैंने यहाँ पे एक इंसुलेटर या कंडक्टर रख दिया, ये पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस करेगा। नेगेटिव इंड्यूस करने का मतलब फिर समझ लीजिए, ये पॉजिटिव है, इसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, these electrons will be attracted by this positive, so all the negative electron will be accumulating here and all the positive will be accumulating here. Got it? Am I clear in my words? Sir, remember, you are not conducting electricity. Conducting electricity is a different phenomenon. Here you are saying the electrostatic, and when you say this is the static, मैंने आपसे कहा था, याद करो, प्रेशर के केस में बॉटल में पानी रखा है, नहीं बह रहा है, क्यों नहीं बह रहा है? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। अगर टेंजेंशियल फोर्स आता तो बॉटल में रखा हुआ पानी बह जाता। आपने डैम में पानी भर रखा है, हाइड्रोस्टैटिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आपके कंडक्टर के ऊपर फील्ड हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ये फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर के पैरेलल नहीं होगी। अगर फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर के पैरेलल हो गई तो वो क्या करेगा? चार्ज को फ्लो करा देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, और वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Is this clear to all? This is known as, I am removing this part, so this will be a virtual charge. और वर्चुअल चार्ज है तो इस बात का मतलब दिस इज मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज। ये इलेक्ट्रिकल इमेज है। इलेक्ट्रिकल इमेज कहां होती है ना, आज आप मुझे ढूंढ कर कल बताएंगे। अगर मैं इसके बीच में फोर्स बिटवीन शीट एंड चार्ज कैलकुलेट करूं, ध्यान रखिएगा, अब सिर्फ फोर्स बिटवीन चार्ज एंड शीट नहीं होगा, फोर्स होगा इसके बीच में और इसके बीच में। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव नॉट गिवन दिस नेगेटिव चार्ज हियर, दिस इज डेवलपिंग। जैसे मिरर के अंदर तुम नहीं खड़े हो, तुम्हारी इमेज बनी, इन द सेम वे जब आपने यहाँ पे पॉजिटिव रखा, यहाँ पे नेगेटिव अपने आप बन गया, ये वर्चुअल चार्ज है। तो फोर्स के लिए डिस्टेंस कोई बताओ मुझे कितनी लगेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q square. If this is the q, so this upon 2x whole square. तो ये ठीक है। Is this clear? Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Any doubt? Anyone is having any doubt? Mahi, Manya, Oppo A53, Priya, Abhinav, Akash, प्रतीक पांडे, उत्कर्ष, सोनी शर्मा,
देखो थिंग्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी में कन्वर्जन हो जाता है बस। वहां पर आप ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते थे, यहाँ पर आपने चार्ज की इमेज बना ली, ठीक। नाउ यू सी दिस इज द कंडीशन। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1.29 पे। सी सॉल्विंग क्वेश्चन इज अ डिफरेंट थिंग बट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट थिंग। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है लेकिन क्वेश्चन की बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। अब दिस इज द एग्जाम। अराउंड 6 minutes आर लेफ्ट इन दिस मीटिंग, ठीक। आई एम ट्राइंग टू गेट इट। दिस इज 1.9 NCERT. It is said a hollow charge conductor is having a tiny hole on its surface. So suppose this is a conductor and this is having a tiny hole here. अगर कंडक्टर में होल नहीं होता तो कंडक्टर शायद ऐसा, इसके हर तरफ पॉजिटिव चार्ज होता, इसमें भी अभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस कंडक्टर को मैंने हटा दिया, यहां से इस पॉजिटिव को हटा दिया, इसमें होल कर दिया, तो ओनली दिस पार्ट इज नॉट हैविंग द चार्ज। तो यहां से जो फील्ड होगा, ये जो फील्ड होगा ना, ये कुछ इस तरह से होगा। ये जो पॉजिटिव है इसकी पूरी सरफेस, दिस इज अ टाइनी होल। We always say that here the field is zero. तो field is zero. Suppose that this is the E1. अब इसका एक field E1 इधर भी होना चाहिए because this is a positive. अगर मैं किसी दूसरे part of charge के due to field calculate करूं तो there should be a field E2 and then this field must be propagating here also E2. This E1 is equal to E2. This is equal to sigma upon epsilon naught. Am I clear? Here you can see E1 plus E2 equal to sigma upon epsilon naught, and here you can see E1 minus E2. This is equal to 0 because this is a conductor. Inside the conductor the electric field is always 0. Sorry. If you add these two, then this is cancelled here. So 2E1 will be sigma upon epsilon naught. So E1 will be, that is equal to E equal to sigma upon 2 epsilon. Is this clear to all? This is the question number 1.29 NCERT. Is this clear to all? Anyone having any doubt? Ayush Gupta, Devansh, Ansh, Riva, Ananya. Anyone? All of you understood this question and the background of the question? किसी भी बच्चे? समझ जी सर। बिल्कुल भी वाला। जी सर। सर ये वाला, सर ये आप जो अभी फिगर दिखाई बोला, ये वाला क्वेश्चन समझ। ये वाली फिगर मैंने आपसे कहा दैट दिस इज अ कंडक्टर. Someone have sent the message. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया आपने? वेरी गुड. इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर. अगर अभी मीटिंग ओवर हो जाए तो फिफ्थ पीरियड में फिर से हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे. ओके, दिस इज अ कंडक्टर. इसकी सरफेस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है. ई इधर गया, ई इधर गया. मैं कहता हूं यहाँ पे ई जीरो है. कहिए जी ठीक है. अब यहाँ पे ई जीरो कैसे होगा? सर जब तक दो वेक्टर कहीं से एक दूसरे को कैंसिल ना करें ई जीरो नहीं होगा. कहिए ठीक है. यानी कि इस वाले पॉजिटिव का फील्ड इसके लेफ्ट में भी है, इसके राइट में भी है. इस वाले पॉजिटिव का फील्ड इसके लेफ्ट में भी है, इसके राइट में भी है. यहां पर आकर दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट थे इसलिए कैंसिल हो गए. यहां पर दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ में थे. कहिए ठीक है. तो व्हेन मैं अगर एक सरफेस का, इतने सरफेस का फील्ड कैलकुलेट करूं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कहिए ठीक. गॉट इट? इज दिस क्लियर?
Is this clear? Utkarsh? Anyone having Yes, the sir, doubt? clear. ठीक है, इसको क्वेश्चन को अगेन वी डिस्कस इन द 5th पीरियड. ओके, प्लीज डू कम. Okay, very good. So I'm turning Hello. off the meeting. Okay, and rest we discuss in 5th period. Okay.